आज जो है स्टैटिक रेटिनोस्कोपी का पार्ट 2 हम करेंगे, जिसके ऑप्टिक्स से कुछ लेते हैं। Disclosure. Outlines of today presentation are properties of retinoscopic fundus reflex, which included direction of motion, brightness, and speed of motion. Direction of motion. We will discuss two types of reflex motion. One is with motion, that is that in which the reflex moves in same direction with that of the streak, while the other is against motion. Reflex moves in opposite direction to that of streak. The following examples are explained with plane mirror retinoscopic setting. First हम with motion को पढ़ेंगे. In with motion, the streak is formed by illuminating slit and is projected onto patient's eye. The patient who is hyperopic relative to the retinoscope, an upright, blurred image of the streak is formed on the fovea. The patient retina is conjugate with a point behind the eye. ये हमने already वो previous presentation में पढ़ा भी है. Here. ये इल्यूमिनेटेड सोर्स हो गया रेटिनोस्कोपिक मिरर. तो इसको हमने क्या कर दिया, ये पेशेंट रेटिना को हमने क्या इल्यूमिनेट कर दिया है, और ये उसका व्यू है कि ये रिफ्लेक्स है प्यूपल में. ये पेशेंट का रेटिना हो गया है जो हमने इल्यूमिनेट किया है, और ये क्या है, कंजुगेट है विद दिस पॉइंट, विद इट्स फार पॉइंट विच इज बिहाइंड द पेशेंट आई. ठीक है, और इसका एक अपराइट ब्लड इमेज बना हुआ है इसके फार पॉइंट पे. Now, retinoscope is moved upwards, so the streak on the patient's face and image of the streak on the patient's retina move up. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस प्रेजेंटेशन में कि किस तरह वो रेटिना पे वो किस तरफ में मूव करता है in case of plane mirror effect. At some point, the center of the image of the streak approaches the limit of the field of view of the examiner. जब हम उसको यानी मूव करेंगे अपवर्ड, रेटिनोस्कोप को हम टिल्ट करेंगे, तो किस पॉइंट पे क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स अब प्यूपिल से हाइव होता जाता है, तो ये लिमिटेशन में आ जाता है. जो एग्जामिनर का भी होता है वो फिर लिमिटेशन में आता है. अब इस रेस को हम क्या करेंगे, नो चीफ रे फ्रॉम द रेस ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू containing the image of the streak falls on the inferior retina of the examiner, and thus reflex appears to be in the superior part of the patient's pupil, and the movement appears as with movement. ये जब हम यहाँ से एक रे ड्रा करेंगे जो लिमिटिंग रे था, अब ये पेशेंट के सुपीरियर पार्ट से यानी प्यूपिल के सुपीरियर पार्ट से निकल के ये पेशेंट एग्जामिनर के इंफीरियर रेटिना को स्टिमुलेट करता है. तो फिर जब इंफीरियर रेटिना स्टिमुलेट होता है तो जो प्रोजेक्शन होगी वो सुपीरियर होगी. तो हमने जो रेटिनोस्कोप को मूव किया था अपवर्ड, तो इसका और जो साथ में रिफ्लेक्स जो प्यूपिल में नजर आ रहा है हेयर, तो वो भी आप क्या है, चूंकि इंफीरियर रेटिना एग्जामिनर का स्टिमुलेट हुआ है, तो अब वो रिफ्लेक्स भी सुपीरियर रेटिना में वो दिखेगा. तो जिस तरफ हमने रेटिनोस्कोप को टिल्ट किया था, यानी जो स्ट्रिक हमने ऊपर की तरफ रोटेट किया था, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्स भी ऊपर की तरफ चला गया है. सो दिस इज कॉल्ड विद मूवमेंट और विद मोशन. Now against motion. Again, the streak is formed by illuminating slit and is projected onto patient's eye. The patient who is myopic relative to the retinoscope, a real inverted and blur image of the streak is formed on the fovea. Here, ये हमने पेशेंट का जो रेटिना था वो पेशेंट के आई को हमने इल्यूमिनेट किया, तो यहाँ पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गया पेशेंट का रेटिना का. ठीक है, again when we move the retinoscope upward,
So the streak on the patient's face and the image of the streak on the patient's retina move up. At some point, the center of the image of streak approaches the limit of the field of view of the examiner. Here again, हम जब रेटिनोस्कोप को ऊपर की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो सेम वो एग्जामिनर का जो व्यू है फील्ड ऑफ व्यू वो लिमिटेशन में आ जाता है क्योंकि रिफ्लेक्स जो है अब वो क्या होता है डिसअपियर होता जाता है जबकि रेटिना पे वो सेम डायरेक्शन में जाएगा in upward direction. Here, the chief ray from the edge of the field of view containing the image of the streak falls on the superior retina of the examiner. The streak image is real and inverted. This is the patient's far point here. So जो lower pupil के lower border से था lower area से वो जाके जब far point को cross करते हैं तो वो रेस आपके किधर चले जाते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं here in this. So ये रेस जो नीचे पीपल के लोअर बॉर्डर से आ रहे थे अब वो फार पॉइंट को क्रॉस करके एग्जामिनर के सुपीरियर रेटिना को स्टिमुलेट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्स दिखेगा वो इंफीरियर पार्ट ऑफ द पीपल में होगा जबकि जो स्ट्रीक था रेटिनोस्कोप का हमने उसको अपवर्ड टेल किया था while the reflex moves in opposite direction in the downward. This reflex appears to be the inferior part of the patient's pupil. The movement appears as against movement. Here, this is the whole diagrammatic presentation of the with against movement. This is the patient eye. Here is the retinoscopic mirror. फर्स्ट इसको हमने यहाँ पे एंगल फर्स्ट पे था ठीक है उसके बाद इसको हमने रोटेट किया एट एन एंगल अल्फा ठीक है ये पेशेंट हाइप्रोपिक आई का पॉइंट है ये मायोपिक ऑफ ग्रेटर मोर देन वर्किंग डिस्टेंस का फार पॉइंट है जबकि ये फार पॉइंट है ऑफ मायोपिया लेस देन वर्किंग डिस्टेंस जिसमें हाइप्रोपिया में क्या होगा विद मूवमेंट इसमें मायोपिया ऑफ लेस देन वर्किंग डिस्टेंस में भी विद मूवमेंट जबकि मायोपिया of greater than working distance ये against movement होगा this is in case of plane mirror effect. The second property is brightness of the reflex. So reflected light focuses at far point plane of the eye. In case of myopia the far point is in front of the eye while that of hyperopia it's behind the eye. At neutrality the far point is moved to coincide with the aperture of the retinoscope. जब हम बार बार न्यूट्रलिटी लेंस डालते हैं तो उसको हम फार पॉइंट जो है कहाँ पे ले आते हैं रेटिनोस्कोप का जो पिप होल है वहां पे ले आते हैं फार पॉइंट जब फार पॉइंट लार्जर डिस्टेंस पे हो so fraction of exiting light waves fronts moves through the retinoscope aperture so fundus reflex appears dim while when in case of the far point retinoscope aperture, increasing portion of light wave front will penetrate retinoscope aperture, so fundus reflex appears bright. If the far point is made to approach the aperture of the retinoscope, an increasing portion of the light wave fronts penetrate the retinoscope aperture, and the reflex, the pupillary reflex becomes brighter until it reaches its brightest when neutrality is attained. यहाँ पे ये पेशेंट आई हो गई थी कि यहाँ पे रेटिनोस्कोप का वो हो गया रेटिनोस्कोप एपर्चर ठीक है जी यहाँ पे अब अगर पेशेंट का हम फार पॉइंट एग्जैक्टली दिस एपर्चर हो रेटिनोस्कोप के एपर्चर पे हो तो यहाँ पे जितनी भी लाइट यहाँ से एग्जिट कर रही है तो वो सारी की सारी यहाँ पे फोकस हो रही है रेटिनोस्कोप के एपर्चर पर तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी जबकि अगर रेटिनोस्कोपिक एपर्चर यहाँ पे है ठीक है जबकि फार पॉइंट पेशेंट का इस पॉइंट पे है तो यहाँ जब ये रेज यहाँ से जाके इस पॉइंट पे फोकस होंगे यहाँ से फिर ये रेज क्या होंगे डाइवर्ट जाएंगे जब ये रेज डाइवर्ट जाएंगे तो वेरी पार्ट ऑफ द these rays fraction wave fronts will penetrate the retinoscope and the reflex will appear dimmer. Some factors responsible for brightness of the retinoscopic fundus reflex is brightness of the light source, apertures, losses in transmission, and distances.
So first one is the brightness of the lights. Uh, Two properties, like one is the power of the light source, and the other is the incandescent area. अच्छा, अब इसमें अगर हम पावर की बात करें कि पावर कितना है, मतलब लेट्स सपोज 2 बल्ब है रेटिनोस्कोप के, एक का जो पावर है वो ज्यादा है, दूसरे का पावर जो है वो कम है। तो अब जिसका पावर ज्यादा है जिस बल्ब का, तो उससे जो लाइट रेज इमिट होगी वो क्या होगी, वो भी पावरफुल होगी। तो इस केस में भी जो फंडस रिफ्लेक्स होगा वो ब्राइट होगा। सेकेंड जो है इनकैंडेसेंट एरिया, जो बल्ब जो फिलामेंट है, अगर उसका एरिया कम है तो वहां से जो लाइट सोर्स लाइट निकलेगी वो भी ब्राइट होगी। अगर उसका एरिया ज्यादा है तो जहाँ उससे लाइट जब निकलेगी तो वो भी क्या होगी, वो मोर एरिया पे वो होगा, एक्सपेंड होगा, स्प्रेड होगा। तो उस केस में भी जो रिफ्लेक्स होगा, फंडस रिफ्लेक्स, उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो डिम होगी। In retinoscopy, if both factors are kept constant, the brightness of the light patch on the patient's retina will be maximum when its area is smallest, like when it is a sharp image of the source. The second is property is aperture. एपर्चर में हम डिफरेंट एपर्चर्स आते हैं। वन इज द एज ऑफ द मिरर, लाइक प्लेन मिरर का एज है और कनकेव मिरर इफेक्ट का जो एज है। सेकंड थिंग पेशेंट्स प्यूपल साइज, एंड द थर्ड वन इज द मिरर होल। अब प्लेन मिरर का अगर ये हम इसके वो ले साइज ले लें, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से जब हम लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मिरर के थ्रू क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है जी। और इसका जो वर्चुअल इमेज है यहाँ पे बन जाएगा। अब ये लाइट यहाँ से होकर डाइवर्ज जा रही है, ठीक है, ये पेशेंट की आई है। अब इस एरिया पे क्या है, ये पिपिलरी प्लेन हो गया और ये पेशेंट के पिपल साइज हो गया है। पिपिलरी प्लेन पे जो स्ट्रिक है, ये जो एरिया है, इसका जो साइज है, डायमीटर है, वो क्या है, ए एंड बी, ठीक है जी। जबकि मतलब ये इतने एरिया पे क्या हो गया, ये जो लाइट है वो इस एरिया पे स्प्रेड हो गई है। अब जबकि पेशेंट एरिया अगर क्या हम, तो ये एरिया है। सो द लाइट रीचिंग द प्यूपल इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लाइट पेंसिल, ठीक है जी, इन टू द एरिया ऑफ द pupil. The light received by the pupil is determined by, one is the size of the pupil here, and the other is the distance from the source, कि यहाँ से ये पीपल साइज कितना है, और साथ में ये जो वर्चुअल सोर्स बना हुआ है इसमें और इस आई में ये डिस्टेंस कितना है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। सो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट व्हिच हैज डायमीटर दिस वन, हाँ ए बी, ठीक है, at the pupillary plane. So only a fraction of these small rays, here in this one, enters the pupil. The utilized portion of the light pencil is relatively small. अगर हम इसका डायमीटर देखें और इस एरिया का डायमीटर देखें तो ये काफी कम है। तो इस यूजुअली प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्स होता है अभी डिम होता है। In case of concave mirror, concave mirror the reflected light is convergent, ठीक है जी। अब द यूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द लाइट डिपेंड्स, ये जो हम पोर्शन यूटिलाइज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एट द पिपिलरी प्लेन। यहाँ पे जो है पिपिलरी प्लेन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द पिपल, सेम जिस तरह हमने प्रीवियस किया हुआ था। अब बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेयर, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट पिपिलरी प्लेन एट दिस एरिया, ये of light at the pupillary plane depends upon the focal length of the mirror, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में देखें तो जो लाइट है वो यहाँ पे फोकस हुई है। इस केस में लाइट पेशेंट के का अभी वो है करीब है, और थर्ड केस में ये यहाँ पे हुई है, फोकस हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे जो डायमीटर है इस कंपेयर, तो ये थोड़ा ब्लर है एज कंपेयर टू दिस वन।
ठीक है, क्योंकि इसमें और इसके डायमीटर में, पिपिलरी डायमीटर में और जो लाइट स्ट्रिक है उसके डायमीटर में जो डिफरेंस है वो काफी कम है, तो इस केस में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जबकि इस केस में इन दोनों अबव पोजीशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम क्या करें, प्लेन मिरर के वर्जन्स को चेंज करें, उसके कन्वर्जेंस को, और उसका जो फोकल लेंथ है, अगर हम मतलब जो लाइट है इमीडिएट सोर्स जो बना हुआ था, अगर वो पेशेंट आई के करीब है, तो उस केस में क्या होगा, वो लाइट जो स्प्रेड होगी एट द पिपिलरी प्लेन वो कम होगी, तो हमें जो रिफ्लेक्स मिलेगा वो ब्राइट मिलेगा। There is no doubt that a suitable concave mirror gives better illumination than a plane mirror, especially in high refractive errors. The second aperture is the patient's pupil. Brightness will increase with the diameter of the pupil. ठीक है, but this is accompanied by confusion circles when retinal image is blurred image। ठीक है, जब कोई लेंस हमने नहीं रखा और जो पेशेंट को, लेट्स सपोज पेशेंट -3 डायप्टर का मायोप है और कोई भी लेंस हमने करेक्टिंग लेंस नहीं रखा, अब उस केस में जो रेटिना स्टिमुलेट हुआ है, वो जो इमेज है वो क्या है, वो ब्लर्ड इमेज है रेटिना का। तो इस केस में क्या होता है, कंफ्यूजन सर्कल्स आ जाते हैं, और ये कंफ्यूजन सर्कल्स क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ द लाइट पैच एंड दिस डिक्रीजेस द ब्राइटनेस। फायदा तो ये हो गया डायमीटर पीपल का कि ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन साथ में चूंकि वो इमेज ब्लर्ड है तो कंफ्यूजन सर्कल्स बनते हैं, तो वो कंफ्यूजन सर्कल्स रिवर्सली क्या करते हैं, ब्राइटनेस को डिक्रीज भी करता है। द थर्ड वन इज द मिरर होल। Again it increase in size will increase brightness, but इसका मसला ये होगा इस केस में कि it affects the sharpness of the reversal point, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट में क्या करता है, जो अपर्चर है वो कंजुगेट कर जाता है पेशेंट के पिपिलरी प्लेन पे। अब पेशेंट के रेटिना के साथ अब पेशेंट वहाँ पे पिपिलरी एरिया में इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा इस मिरर होल का भी। अब अगर होल ज्यादा हो तो उसका इमेज भी क्या होगा, बड़ा वहाँ पे बिग बनेगा। तो अब उसमें न्यूट्रलिटी में मसला होगा कि हम रिवर्सल पॉइंट को गेन नहीं कर सकेंगे, जो सेंट्रल एरिया होगा वो बार बार क्या होगा, वो डार्क नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, जबकि न्यूट्रलिटी में हम क्या करते हैं कि फुली ग्लो मिलता है हमें। लॉसेस इन ट्रांसमिशन की वजह से भी हमें फंडस रिफ्लेक्स, मतलब उसमें ब्राइटनेस में चेंजेस आ सकती हैं। अगर इम्परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर हो, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ocular मीडिया that may be normal or abnormal and correcting lenses नॉर्मल लाइक अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है किसी पेशेंट में तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और एब नॉर्मल में ये कोई मीडिया ओपेसिटी हो तो उस वक्त भी वो लाइट स्कैटर होगी और कम जो लाइट होगी वो काफी कम हमें मिलेगी वापस बाउंस बैक, और करेक्टिंग लेंस की वजह से भी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी वो लॉसेस इन ट्रांसमिशन आ सकते हैं। Absorption of light by retina in RPE is clearly explained. Distance is ये क्या कहते हैं, ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी हम रेटिनोस्कोपी के रिफ्लेक्स पे हम वो ब्राइटनेस पे यानी एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है कि illumination of the retinoscope aperture by a point and the observed fundus reflex is inverse function of the square of the distance of the far point from the retinoscope aperture according to the inverse square law. This is E is the illumination at the retinoscope aperture from a point and the fundus reflex at the far point plane. This is the intensity of a point of the fundus reflection when imaged at the far point plane. W is here, but this is the working distance, dioptric working distance, and this is the residual emmetropia or spectacle plane refraction. इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस 4 टाइम्स कम हो जाती है, यहाँ पे 8 टाइम्स, ठीक है, ये कम हो जाती है। तो अब जितना फार पॉइंट पेशेंट के करीब होगा तो उस वक्त ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब फार पॉइंट जितना ज्यादा यानी डिस्टेंस अवे होगा, ठीक है, तो उस वक्त भी जो ब्राइटनेस होगी वो कम कम मिलेगी हमें। सेकंड थिंग, अगर जो इमीडिएट सोर्स है वो आई के क्या है, पेशेंट आई के करीब है,
तो उस वक्त भी हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स जो मिलेगा वो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा जी, ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसका रेटिना है, ये इसका प्यूपिल साइज है JNH, ये पिपिलरी डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है रेटिनोस्कोप पे पर्चर हो गया है। ये इससे जो बना हुआ है इमीडिएट सोर्स, ये है, ठीक है। ये इमीडिएट सोर्स मतलब जो लाइट हमने रेटिना को, जिस रेटिना को हमने इल्यूमिनेट किया था, ठीक है, वो कंजुगेट है अब इसके इमीडिएट सोर्स के साथ। और ये जो दिस JNH, ये पीपल डायमीटर है। और ये इस जो पेंसिल ऑफ रेज है, ये इसका क्या है, ये इसका डायमीटर ये है, ठीक है, इसके साथ कंसाइड कर रहा है। अब अगर हम देखें, एक पेशेंट है जिसका फार पॉइंट इस डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब अगर हम इसका वो क्रॉस ड्रा कर ले, लाइक ये लिमिटिंग रेज जो है यहाँ से हो के पेशेंट के फार पॉइंट के साथ प्यूपल का जो ये एरिया है, यहाँ से हम एक रे ड्रा करके फार पॉइंट से वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करके उससे निकालते हैं, उसके बाद यहाँ से, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट वन, अब पेशेंट यहाँ पे पिपिलरी प्लेन पे देखते हैं कि कितना एरिया जो है, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, कितना एरिया यहाँ, इस एरिया इसका एरिया कितना है, डायमीटर कितना है इस एरिया का, या रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना है। ये प्लेन ऑफ साइट होल है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस केस में जो है, मतलब यहाँ पे अगर हम डायमीटर देखें इस एरिया का, जिसका फार पॉइंट, इस पेशेंट का जिसका फार पॉइंट जो है वो इस V1 पोजीशन पे है, अब जो लाइट यहाँ से क्रॉस हो, मतलब यहाँ से पास होके वो डाइवर्ज होके जाएगी, या पेशेंट जो रेटिनोस्कोप है इसके साइड होल पे उसका जो डायमीटर है इस एरिया का वो इतना बना हुआ है, तो ये क्वाइट क्या होगा, डिम होगा। अब सेम नेक्स्ट पेशेंट है जिसका फार पॉइंट अभी क्लोजर टू द रेटिनोस्कोप में देन द प्रीवियस वन, ठीक है। सेम जब उसी तरह हम ये ड्रा करते हैं यहाँ पे, अब इसका सर्कल अगर देखें, ये सर्कल छोटा है तो ये ब्राइटर होगा। एंड में क्या मिलेगा हमें, कि जब फार पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हमें ये सारा एरिया ग्लो मिलेगा। कि ये रेटिनोस्कोप का प्लेन हो गया, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक। सो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमर्जिंग लाइट होती है वो दैट इज डाइवर्जेंट, व्हाइल इन दिस वन, लाइक जो राइट निकलती है वो डाइवर्ज है, जबकि इन केस ऑफ मायोपिया इमर्जिंग लाइट पेंसिल इज कन्वर्जेंट, दिस वन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइपरमेट्रोपिया में जितना हम मतलब हाइपरमेट्रोपिया की डिग्री जितनी ज्यादा होती जाती है, लाइक एक +2 का हाइपरोप है, दूसरा +6 का है, तीसरा है +10 का। तो +10 का जो हाइपरोप है उससे जो इमर्जेंट रेज है वो ज्यादा डाइवर्ज होंगे। और सेम अगर मायोपिया का हम ले ले तो जितना मायोपिया मायोपिया मतलब बढ़ता है उसमें जो इमर्जेंट लाइट रेज है वो ज्यादा कन्वर्जेंट होंगे। यहाँ पे आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वो भी डाइवर्ज होके जाएंगी। तो बहुत कम अमाउंट में क्या होगी, ये रेटिनोस्कोप के पिप होल से या साइड होल से क्या जाएगी, एग्जामिनर के आइस तक पहुंचेगी। तो इस केस में भी, यानी इन केस ऑफ हाई हाइपरमेट्रोपिया, हाई मायोपिया, उस केस में भी क्योंकि कम अमाउंट जो है, लेस अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द पेशेंट आई, एग्जामिनर आई, तो उसमें भी रिफ्लेक्स जो होगा क्या होगा, वो भी ब्लर होगा, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। ओके, सो काजेस ऑफ डिमनेस ऑफ द रेटिनोस्कोपिक फंडस रिफ्लेक्स हैं, ठीक है, जिस तरह हमने अभी पढ़ा, पेशेंट्स विद स्मॉल पीपल, ठीक है, हाइपरोप है, एल्डरली पेशेंट है, मॉर्फिन निकोटीन यूजर्स हो गए, तो वो हमने इसको ऑप्टिकली उसके साथ कंपेयर कर दिया। पेशेंट विद हाईली पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम, ठीक है, वहाँ पे लॉस ऑफ ट्रांसमिशन उसकी वजह से, मीडिया ओपेसिटीज में भी लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। एक्सेंट्रिक पोजीशन, अगर हम एक्सेंट्रिक रेटिना को कर रहे हैं, चूंकि सेंटर में मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा है, जिनतोफिल है, वहां से रिफ्लेक्स जो मिलता है वो क्या होता है, ब्राइट मिलता है। जबकि जब हम एक्सेंट्रिक पोजीशन पे जाते हैं तो वहां से भी रिफ्लेक्स होती है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर पुअर कंट्रोल ऑफ एकोमोडेशन हो तो उस केस में चूंकि फार पॉइंट कभी फार वो एकोमोडेशन की वजह से उसके जो रिफ्लेक्टिव एरर है वो वेरी करता है,
तो उसकी वजह से हमें डीम रिफ्लेक्स मिलता है। जब वो ज़्यादा अकोमोडेशन करे तो उसका फार पॉइंट रेटिनोस्कोप से काफ़ी दूर चला जाता है, तो उस वजह से हमें फिर कम लाइट रेज जो होते हैं वो कम मिलते हैं एग्जामिनर को। ways to enhance the brightness of the retinoscopic fundus reflex, जिस तरह ऑलरेडी हमने पढ़ा, increase the luminance output of the retinoscope जो पावर था और incandescent एरिया था, डिक्रीज द वर्किंग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस से रिलेटेड था। अगर इमीडिएट सोर्स है वो पेशेंट के करीब है तो फिर हमें ब्राइट रिफ्लेक्स मिलेगा, अगर वो दूर है तो, या वर्किंग डिस्टेंस हम डिक्रीज करें तो उस वक्त भी हमें क्या मिलेगा, ब्राइट रिफ्लेक्स मिलेगा। डायलेटिंग द पेशेंट द प्यूपल, ठीक है, पेशेंट्स प्यूपल, उस वक्त भी हमें, लेकिन साथ में वो जो कंफ्यूजन सर्कल्स थे वो थोड़ा इफेक्ट करते हैं। Yeah, enlarging the retinoscopic aperture, already discussed in the previous slide, and streak portion can be made brighter by adjusting the versions of the incident beam, जिस तरह हमने वो कनकेव मिरर का वो चेंज कर दिया था, उसका फोकस हमने चेंज किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो स्पीड ऑफ मोशन है। स्पीड ऑफ मोशन को हम कोरिलेट करेंगे विद मल्टीपल other factors. One is a relative speed of the motion relative to the speed of the immediate source. जो immediate source बना था उसकी स्पीड उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे with through this formula. This alpha is the speed of the reflex, while u is the speed of the immediate source or the retinoscope mirror. W is the dioptric working distance and k is the refractive error at corneal plane. इसमें अगर हम देखें मेन वेरिएबल जो है वो एमेट्रोपिया है के। अगर हम वर्किंग डिस्टेंस भी कांस्टेंट रखें, ठीक है, डब्ल्यू को, और जो स्पीड है और रेटिनोस्कोप का जो टिल्टिंग है उसको भी अगर हम कांस्टेंट रखें एक खास वैल्यू पे, तो जो इमीडिएट सोर्स था वो भी अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक वैल्यू में वो मूव करेगा। तो अगर हम सब सब चीज़ों को कांस्टेंट रखें तो जितना एमेट्रोपिया ज्यादा होता है तो उसमें हमें जो मिलता है रिफ्लेक्स स्पीड तो वो स्लो मिलेगा। अगर हम एमेट्रोपिया को कम करते जाएं तो जो रिफ्लेक्स स्पीड मिलेगा वो बढ़ती जाएगी। सेकेंड इज रिलेटिव टू द ऑप्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द रेटिनोस्कोप। इसमें हम जब वर्जन्स को चेंज करते हैं, यानी इमीडिएट सोर्स का जो है उसका डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं, तो उस केस के साथ उस केस में भी लाइक जिस तरह हमने कनकेव मिरर इफेक्ट में देखा, जब हम वो चेंज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ लाइक लाइट के वर्जन्स को, तो उसके साथ भी ब्राइटनेस के साथ साथ स्पीड भी वो क्या हो जाती है, उसमें भी चेंजेस आती है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो थ्रू दिस फार्मूला है। And u is the speed of the immediate source, theta is the speed of the mirror rotation, while w is the dioptric working distance, and x is the distance of the immediate source. Third one is the relative to the speed of mirror. इसमें क्या है, अगर हम a alpha by theta is equal to angular moment of reflex slash divide by mirror rotation, ठीक है। इसमें एंड में यह है कि वर्किंग डिस्टेंस अल्फा इज द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स while theta is the speed of the mirror rotation, w is the working distance, and k is the refractive error at corneal plane, and x is the distance of the immediate source। उसको भी through this formula हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्स स्पीड रिलेटिव टू द एक्सियल लेंथ, इसके थ्रू हम थोड़ा मतलब एग्जांपल, चूंकि उसमें बाकी जो उस ऊपर वाले थे उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, तो हम इस पे थोड़े एग्जांपल वो करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। इसमें जो है लाइक एक्सियल लेंथ के साथ वो किस तरह वेरी करता है स्पीड, फार्मूला ये है कि h prime which is the speed of the reflex is equal to k refractive power inverse of the axial length, हम ले सकते हैं इसको, t is the dioptric working distance, and refractive error is the emergence divergence, that is the refractive error। एग्जाम्पल 1 में हम कहते हैं कि एक अनकरेक्टेड मायोप है ऑफ -4 डायोप्टर, जबकि वर्किंग डिस्टेंस है वो 2 डायोप्टर की 50 सेंटीमीटर है। तो जो इमर्जेंट रेज है मायोपिक आई से, उसकी जो वर्जेंस है कन्वर्जेंस है तो वो कितना है, +4 डायोप्टर वो कन्वर्ज निकल रही है। अब हम उसको जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसी फार्मूला में जब h प्राइम इज इक्वल टू k प्राइम डिवाइड बाई वर्किंग डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव एरर,
तो इससे ये -2 आ रहा है। दिस माइनस साइन शो कि ये जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट मूवमेंट है। अब इसको हम तो एक लो डिग्री ऑफ मायोपिया के साथ कंपेयर करेंगे कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अनकरेक्टेड मायोप है -3 डायप्टर का, जबकि वर्किंग डिस्टेंस जो है वो +2 डायप्टर की है। रिफ्रैक्टिव एरर यहाँ पे कितना हो गया है, मतलब जो कन्वर्जेंट रेस कन्वर्जेंस है वो +3 डायप्टर हो गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैलकुलेशन के बाद इस केस में देखें ये टू टाइम्स आ रहा है इसके, जबकि ये 1 टाइम है। यहाँ पे माइनस साइन जो शो कर रहा है, हाँ वो इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, मतलब लेट सपोज यहाँ पे 60 है। अब जब 60 को मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 60 को 1 पे डिवाइड करूँ तो 60 आ रहा है। तो ये मतलब इसमें मूवमेंट जो है वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ये अनकरेक्टेड मायोप है, -2 डायप्टर का। वर्किंग डिस्टेंस जो है वो मतलब 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वैल्यू +2 डायप्टर है। मायोपिया जो रेज मिल रहे हैं कन्वर्जेंट रेज वो 2 डायप्टर के मिल रहे हैं। अब अगर हम इसको देखें सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सब जब हम इस एक्सियल लेंथ को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। तो इनके इन न्यूट्रलिटी पे हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब काफी फास्ट मूवमेंट मिलती है जो कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। ये सेम है, अनकरेक्टेड मायोप है, ऑफ लेस देन वर्किंग डिस्टेंस है, सेम है। ठीक है, इसमें ये प्लस साइन क्या शो करता है हमें, ये इंडिकेट्स कि इसमें विद मोमेंट होंगे, जो मोशन जो है कि वो विद मोमेंट होगी। दिस इज इमेट्रोप। ठीक है, आप अगर इमेट्रोप और हाइपरोप का हम वो कंपेयर कर लें, इमेट्रोप पे अगर हम 60 को 2 पे डिवाइड कर लें और हाइपरमेट्रोप ऑफ 1 डायप्टर, जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, जब हम इसको उस कैलकुलेशन के बाद ये 3 आ जाते हैं, जब हम 60 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो इस केस में जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। तो इसमें स्पीड क्या होगा, स्लो, जबकि इसमें स्पीड हाई। कि यहाँ पे सेम उसी एग्जांपल को थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ स्पीड के साथ भी। लाइक हाइपरोपिया है, जो रेज निकल रहे हैं वो काफी क्या है, हाई हाइपरोपिया है तो डाइवर्ज निकल रहे हैं, जबकि इन केस ऑफ मायोपिया हमें क्या रेज मिल रहे हैं, कन्वर्ज रेज मिल रहे हैं। अगर पिप होल से कम रेस पास होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मूवमेंट देंगे इस मिरर को, तो चूंकि ये काफी क्या है, अवे है, तो लो अमाउंट ऑफ रेज जो है वो क्या होंगे, रेटिनोस्कोप के पिपहोल से पास होकर एग्जामिनर के रेटिना को स्टिमुलेट करेंगे, और ये क्या लेगा, टाइम भी लेगा कि ये रेज, मतलब चूंकि ये डाइवर्ज हैं तो जो रेज यहाँ से पास हो रहे हैं तो वो क्या है, अवे हैं, तो थोड़े कम रेज पास हो रहे हैं यहाँ से। अब तो ये क्या लेगा, टाइम लेगा काफी, तो उस वजह से भी हमें क्या मिलता है, जो स्पीड होती है वो क्या लो स्पीड मिलती है इन केस ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव एरर्स। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम अटेंशन। कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं चैट बॉक्स से होके जाता हूँ। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं? किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में काइंडली पूछ लें।